Hello, good morning everyone. Myself Dr. Asa Doshi. I am Associate Professor in Public Health Dentistry Department and also the owner of Smart Path Research Services, where I provide all kind of research services like publications, manuscript writing, thesis writing, statistical analysis, etc. So in future, if anyone is in need with anything or any service, then do let me know. Okay, so today I'll be taking the lecture about biostatistics. I know everyone consider it as a tough topic, but believe me, it's not as tough as you think. If you understand the concepts of the biostats, then you won't find it difficult. Okay, so starting with our lecture, what I expect you to be doing in the class, but I know when the class will go on, what you will actually do. But I am assuring you that I'll make it as simple as I can. Okay, so everybody understand what is the importance of number in life, right? If Sachin gets out at zero or Dhoni got out at zero, then we feel very bad, right? But if Sachin makes century, then we feel very happy. So you understand what is the importance of basically numbers in life, right? Okay, so next we will be coming to the research steps. Okay, so first understanding what is biostats when you implement the science into the mathematics. Okay, when you combine both science and mathematics together, that is basically your biostatistics. Okay, this is the simple outline, research outline. First, you need to have an idea of the research project. Then भाई आइडिया होगा तभी तो उस रिसर्च को इम्प्लीमेंट करोगे राइट देन योर फर्स्ट स्टेप after you are having an idea of the research, what you will do a thorough research, okay, literature search, and you'll understand your topic, that what actually you are going to do in that topic. Then second is to identify the research questions, okay. Then third is to form the aims and objectives of your research. What you basically going to do in that research. Fourth is identification of hypothesis to be tested. Hypothesis is basically a question which you are going to formulate whether it is true or false in simple terms. After that, we'll see in the lecture what is basically hypothesis. Then fifth step is you'll identify the key deliverables. Sixth step is you'll identify the resources which you need to be implementing in your study. Then you'll form the time frame, whether you want to complete in 1 month, 4 months, 6 months, etc. Then you form the full workflow model. Okay, तुम अपनी सारी steps basically note करोगे कि what you are going to do in the research. Then you'll check the risk and risk mitigation, and finally you'll undertake your research. So these are the basic steps before implementing the research. Okay, so today we will be covering in our lecture the data, types of data, collection of data, presentation of data, sample, types of sampling methods, errors in sampling, and then measures of central tendency, measures of dispersion, and the inferential statistics. Okay, so basically what is data? Data is basically nothing but collection of facts, numbers, words, measurements, anything, only collection of your matter. Okay, it can be facts, it can be numbers, it can be words, it can be measurements, it can be observation, or just the description of the things. ओके अगर सिंगल फॉर्म ऑफ डेटा को यूज कर रहे हो तो उसे डेटम बोलते हैं, और अगर बहुत सारा डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो देन in plural form it is called as data. Okay, or nothing when you're collecting some facts, some information, basically when you're collecting any information regarding anything. For example, 100 people population is there and I want to know the general characteristics of the male and female in that 100 population. So basically what I am doing, I am collecting the data of that population. Okay, now coming to the types of data, there are basically two types of data. One is qualitative and second is quantitative. क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव नाम से ही समझ में आ रहा है, राइट? क्वालिटेटिव मीन्स जो सिर्फ क्वालिटी को बताएगा, ठीक है, जो तुम्हें कुछ नंबर्स में आइडिया नहीं देगा, विच कैन ओनली बी ऑब्जर्व बट विच कैन नॉट बी मेजर्ड. इफ आई से मेल और फीमेल को मेजर करो,
Can you measure male or female? Can you measure gender? Can you measure color? Can you measure texture? No, you cannot measure. You can only observe, right? So that is basically your qualitative data. And quantitative data, as the name is again indicating, which tells you the information regarding the quantity. ठीक है? For example, if I say measure the height, right? तो तुम measure कर सकते हो. अब उस ऑब्जर्व नहीं करोगे ना हाइट को, राइट? बट अगर मैं बोलूं कि कलर बताओ, तो कलर को क्या कर रहे हो? ऑब्जर्व कर रहे हो, मेजर नहीं कर सकते. क्या हम बोल सकते हैं इतना ब्लैक है या इतना सा ब्लैक है? नो, वी कैन नॉट से ब्लैक इज ब्लैक, राइट? ओके, तो आई होप क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा समझ में आया होगा. इफ आई टॉक अबाउट क्वालिटेटिव डेटा, देन इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू नॉमिनल डेटा एंड ऑर्डिनल डेटा. सो बेसिकली व्हाट इज योर नॉमिनल डेटा? नॉमिनल डेटा मतलब कुछ नहीं होता, इट्स जस्ट द नेम कैटेगरीज, ओके, विच कैन नॉट बी इम्प्लाइड इन ऑर्डर अमंग द कैटेगरी. कोई ऑर्डर नहीं होगा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से जेंडर, जेंडर में मेल होंगे फीमेल होंगे, कोई ऑर्डर, स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है कि इतने ही मेल्स होंगे इतने ही फीमेल्स होंगे, राइट? या फिर ब्लड ग्रुप की बात करें तो ब्लड ग्रुप्स क्या हो गए हमारे? नॉमिनल डेटा, ठीक है? इसका कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता, ये सिर्फ एक नेम्ड कैटेगरीज है, ठीक है? कलर हो गया, टेक्सचर हो गया, या फिर तुम्हारा ब्लड ग्रुप्स हो गया. ओके, देन सेकंड इज ऑर्डिनल डेटा. ऑर्डिनल डेटा में अब क्या होगा? एक स्पेसिफिक ऑर्डर होगा, ठीक है? अगर हम बोले डिग्री ऑफ पेन, सो पेन कैन बी माइल्ड हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, या सीवियर हो सकता है. सो यार तुम्हें क्या है? स्पेसिफिक एक ऑर्डर दिख रहा है किसमें? ऑर्डिनल डेटा में, ठीक है? तो अगर हम वापस से रिवाइज करें तो नॉमिनल डेटा मतलब क्या हो गया? जिसका कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है, सिर्फ क्या है? नेम्ड कैटेगरीज. और ऑर्डिनल डेटा क्या हो गया? जिसका एक स्पेसिफिक ऑर्डर है, ठीक है? अगेन रिमेंबर, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल डेटा इज कमिंग इन द qualitative data which cannot be measured. Then coming to the quantitative data. अब इसको भी अगेन डिवाइडेड इनटू टू, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस. डिस्क्रीट डेटा बेसिकली क्या होता है? डिस्क्रीट डेटा जो होता है दैट इज बेसिकली द न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ पेशेंट्स अटेंडिंग द ओपी, ठीक है? इसमें बेसिकली क्या बताओगे? क्वांटिटी, कि भाई 100 पेशेंट्स आए, 200 पेशेंट्स आए और 800 पेशेंट्स आए, राइट? सो ये क्या हो गया हमारा? डिस्क्रीट डेटा, ओके? लेकिन अगर अब हम सेकंड डेटा की बात करें जो कि है कंटिन्यूस, ये डेसिमल्स में भी हो सकता है या फ्रैक्शंस में भी हो सकता है. बेसिकली ये भी बताएगा नंबर, लेकिन ये एक होल नंबर नहीं होगा. डिस्क्रीट डेटा हमेशा क्या होगा? एक होल नंबर. और कंटिन्यूस डेटा क्या होगा? ईदर इट कैन बी इन डेसिमल्स और इट कैन बी इन फ्रैक्शन, ओके? जैसे क्या हो गया? हाइट हो गई, वेट हो गया, आर्च लेंथ हो गई, ये सब क्या है? कंटिन्यूस डेटा, ठीक है? अगर वेट होगा, ठीक है, किसी का है 65.5 kg वेट, राइट? तो ये क्या हो गया? पॉइंट में हो गया, फ्रैक्शन में हो गया. तो ये सब क्या होते हैं हमारा क्वांटिटेटिव डेटा में कंटिन्यूस डेटा. आई होप टाइप्स ऑफ डेटा समझ में आया होगा. चलो एक रिकैप कर लेते हैं. ओके, अगर हमारा डेटा है जेंडर which is denoted by male or female, then type of variable will be, I mean which type of data it will be? Yes, it will be the nominal data. Okay. Then culture test, positive or negative. Okay. So अब क्या हो रहा है? हमें क्या पता चल रहा है? कुछ नंबर पता पड़ रहा है क्या पॉजिटिव या नेगेटिव में? नहीं. सो अगेन इट इज नॉमिनल डेटा. और ये नॉमिनल डेटा हमारा किस में चल रहा था? क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव? यस, क्वालिटेटिव. ओके, अब आते हैं डेंटल फ्लोरोसिस ग्रेड्स. अगेन सी, इट कैन नॉट बी मेजर्ड. एक ऑर्डर में चल रहा है, नॉर्मल, क्वेश्चनेबल, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर. तो ये क्या हो गया हमारा? ऑर्डिनल डेटा. डेंटल केरीज, प्रेजेंट और एब्सेंट. सिंपल, प्रेजेंट है या एब्सेंट है, तो ये हमारा क्या हो गया? वापस से नॉमिनल डेटा. अब तक हमारे क्या चल रहे थे? ये क्या चल रहे हैं हमारे? यस, क्वालिटेटिव डेटा. ओके, इफ आई से जिंजाइवल ब्लीडिंग, अगेन माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, ये हमारा क्या हो गया? ऑर्डिनल डेटा. देन नंबर ऑफ पेशेंट्स अटेंडिंग ओपी. अब देखना, अब क्या स्टार्ट हो गए हमारे? नंबर्स. नंबर्स मीन्स क्वांटिटेटिव डेटा. क्वांटिटेटिव डेटा में भी नंबर ऑफ पेशेंट्स अटेंडिंग ओपी क्या हो गए?
डिस्क्रीट डेटा, यस। हाइट ऑफ द पेशेंट्स, ये किस में मेजर हो रही है? पॉइंट्स में, तो ये कौन सा डेटा हो गया हमारा? कंटिन्यूस डेटा। ओके, नंबर ऑफ टीथ प्रेजेंट, क्या हो गए? डिस्क्रीट डेटा। एंड अगेन बीएमआई इज इन पॉइंट, सो इट विल बी कंटिन्यूस डेटा। ओके, देन वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कलेक्शन ऑफ डेटा। अब हमें ये समझ में आ गया डेटा होता क्या है, उसके टाइप्स कितने होते हैं। ओके, नाउ हाउ वी आर गोइंग टू कलेक्ट द डेटा? सो वी विल बी कलेक्टिंग द डेटा फ्रॉम ईदर प्राइमरी सोर्स और द सेकेंडरी सोर्स। ओके, प्राइमरी सोर्स नाम से समझ में आ रहा है जो हम डायरेक्टली कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो हम डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू से कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर ओरल हेल्थ एग्जामिनेशन से कर सकते हैं, और या फिर हम क्वेश्चनेयर मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। ओके, देन सेकेंडरी सोर्स which you are not collecting directly from somewhere, ओके। जैसे अगर हम बात करें कि हमने हॉस्पिटल से रिकॉर्ड्स मंगाया और फिर हमने डेटा कलेक्ट करा, तो तुमने डायरेक्टली पेशेंट से डेटा नहीं लिया है, तुमने क्या करा? हॉस्पिटल से लिया है, सो दैट इज बेसिकली योर सेकेंडरी सोर्स। ओके, व्हेन यू आर कलेक्टिंग डायरेक्टली from the patient, or you are directly collecting from some individual, then it is called as primary data. And if you are collecting it indirectly from some source, then it is called as secondary data. ओके, प्राइमरी डेटा में क्या हो गए? या तो डायरेक्टली हम पर्सनल इंटरव्यूज कर रहे हैं, या फिर हम ओरल हेल्थ एग्जामिनेशन के थ्रू डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, और या फिर हम क्वेश्चनेयर मेथड के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल टर्म्स, प्राइमरी सोर्स जो होगा वो फ्रेशली कलेक्टेड डेटा होगा, और सेकेंडरी सोर्स मतलब ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका है डेटा और आप उसको कलेक्ट कर रहे हैं, रिकलेक्ट कर रहे हैं, ओके। नाउ व्हाट सोर्स ऑफ डेटा इज दिस? Yes, you are collecting from medical records. So it is not your primary data, but it is your secondary data. Okay. अब हमारा क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ डेटा हो गया, ठीक है। कलेक्शन ऑफ डेटा के बाद में क्या आएगा? योर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब हमारे पास में डेटा आ गया, राइट, कलेक्ट कर लिया हमने, अब हम उसे क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट कर रहे हैं। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कैन बी डन इन ईदर टेबल्स और चार्ट्स और डायग्राम्स, ठीक है। टेबल्स में भी कौन कौन सी टेबल्स होती है? सिंपल टेबल, मास्टर टेबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। एंड चार्ट्स एंड डायग्राम्स में क्या क्या आता है? बार चार्ट्स, पाई डायग्राम्स, हिस्टोग्राम, लाइन डायग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राफ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, कार्टोग्राम और पिक्टोग्राम। Okay, starting with the tables. ये हमारी क्या है? सिंपल टेबल, ठीक है। सिंपल टेबल मींस सिंपल कॉलम्स दिख रहे हैं, राइट। WHO रीजन दिख रहे हैं, और कौन से रीजन में क्या क्या DMFT स्कोर था। या फिर अगर मैं बात करूं कि फाइनल ईयर में कितने स्टूडेंट्स थे BDS के, ओके। या फिर एक क्लास में कितने मेल और फीमेल थे। सो ये सब हमारे क्या हो गए? सिंपल टेबल्स। अब अगर इसी में हमारे पास में हो जाए मल्टीपल कॉलम्स, ठीक है, तो वो हमारी क्या हो जाती है? मास्टर टेबल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर देख सकते हो, मास्टर टेबल में हमारा क्या हो गया? फर्स्ट कॉलम में तुम्हें क्या दिख रहा है? सीरियल नंबर दिख रहा है। सेकंड कॉलम में कंट्रोल दिख रहा है, बर, शोफू, सॉफ्लेक्स और पी वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारी बेसिकली कॉम्प्लेक्स टेबल क्या होती है? मास्टर टेबल। ओके, देन थर्ड इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कुछ नहीं होता, जब हम अपनी जो हमने डेटा कलेक्ट करा है उसको हम इन फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करें। फॉर एग्जांपल एज ग्रुप्स थे हमारे पास में, डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप्स, और उसके अंदर क्या क्या फ्रीक्वेंसी थी। जैसे 5 to 9 years में 11 फ्रीक्वेंसी थी, 10 to 14 years 18 थे, और 15 to 19 years 35 कैंडिडेट्स थे। ओके, फिर आते हैं हम ग्राफ्स और डायग्राम्स पे। अब ग्राफ्स और डायग्राम्स भी दो में डिवाइड होता है। ग्राफ्स जो क्वांटिटेटिव डेटा के लिए बनते हैं, और डायग्राम्स जो क्वालिटेटिव डेटा के लिए बनते हैं, ठीक है। कौन कौन से आते हैं? अगर हम क्वांटिटेटिव डेटा की बात करें तो उसमें जो ग्राफ्स आते हैं वो होते हैं हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, लाइन चार्ट और ग्राफ, स्कैटर और डॉट डायग्राम। और डायग्राम्स क्वालिटेटिव डेटा में क्या क्या आते हैं? बार डायग्राम, पाई और सेक्टर डायग्राम, पिक्टोग्राम, मैप डायग्राम, और उसको हम स्पॉट मैप भी बोलते हैं, ठीक है। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या क्या होते हैं। ओके, अब स्टार्ट कर रहे हैं हम बार डायग्राम से, ठीक है। बार चार्ट मैंने क्या बताया था, किस में आता है? क्वालिटेटिव डेटा में, ठीक है।
बार चार्ट क्या होता है? जो तुम्हें सिर्फ एक वेरिएबल रिप्रेजेंट करे, ठीक है। जैसे इसमें देख सकते हो, इसमें हमें क्या पता चल रहा है? एक वेरिएबल, वो क्या हो गई हमारी केरीज प्रेवलेंस, ठीक है। और जो लेंथ ऑफ द बार्स तुम्हें दिख रही है वो क्या इंडिकेट करता है? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जैसे 5 to 9 ईयर्स में हमारे पास में केरीज प्रेवलेंस कितनी थी? 20। 10 to 14 ईयर्स में लगभग टेंटेटिवली कितनी थी? 30। और 15 to 19 ईयर्स में हमारे पास में कितनी केरीज प्रेवलेंस थी? 90, ठीक है। तो जो हमारे एक वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमारा क्या हो गया? सिंपल बार चार्ट। और इसमें जो लेंथ ऑफ द ग्राफ्स है या जो बार्स है वो इंडिकेट कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी। देन मल्टीपल बार चार्ट। अब मल्टीपल बार चार्ट में तुम्हें पिक्चर से ही क्लियर होगा। अब क्या हो गए हमारे पास में? मल्टीपल वेरिएबल्स हो गए, ठीक है। अगेन लेंथ तो आपकी वही बता रही है, लेंथ ऑफ द बार इज इंडिकेटिंग योर फ्रीक्वेंसी, बट नाउ द बार इज डिवाइडेड इनटू टू और मल्टीपल। ओके, फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या है? ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए आप देख सकते हो ब्लू कलर में और रेड कलर में इंडिकेटेड है ग्रुप बी। सो दिस इज योर मल्टीपल बार चार्ट। देन थर्ड इज प्रपोर्शनल बार चार्ट, ठीक है। प्रपोर्शनल बार चार्ट में क्या होता है? ये भी मल्टीपल ही होगा, लेकिन अब क्या होगा? एक ही प्रपोर्शन में हो गया, ठीक है। जो तुम्हारे सब ग्रुप्स थे वो एक ही ऑब्जर्वेशन में आ गए, राइट। फॉर एग्जाम्पल सेटिस्फाइड में देख सकते हो ग्रुप ए और ग्रुप बी के एक साथ में एक ही प्रपोर्शन में है, सो दैट इज द योर proportional bar chart, ठीक है। when it is desired to compare only the proportion of subgroups between different major groups of observation, okay। अभी हमें क्या देखना था कि कितने ग्रुप ए ग्रुप बी में सेटिस्फाइड पर्सन थे या फुली सेटिस्फाइड थे और नॉट सेटिस्फाइड थे। फिर आते हैं हम पाई डायग्राम पे, ठीक है। पाई डायग्राम में बेसिकली क्या होता है? परसेंटेज ब्रेकडाउन, ठीक है। अभी जैसे इसमें देख सकते हो जेंडर है, तो जेंडर में कितने मेल थे कितने फीमेल थे, ठीक है। कितने परसेंटेज ऑफ मेल्स थे और कितने परसेंटेज ऑफ फीमेल्स थी, राइट। इसमें ये जो ब्लू एरिया और रेड एरिया दिख रहा है, राइट, ये क्या होता है? हमारा डिग्रीज ऑफ एंगल। ये हमें बेसिकली फ्रीक्वेंसी बताता है। और ये हम अब क्या कर रहे हैं? बार की तरह नहीं करके हम इसको सेगमेंट्स की तरह यूज करते हैं, तो वो हमारा हो जाता है पाई डायग्राम। फिर आते हैं हम लाइन डायग्राम पे। अगर मैं बोलूँ कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ग्राफ कोई है या डायग्राम कोई है, तो वो क्या होता है? लाइन डायग्राम, ठीक है। जो हमारा डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म में। एक्स एक्सिस जो होती है वो रिप्रेजेंट कर रही है इसमें डेज, और वाई एक्सिस इसमें रिप्रेजेंट कर रही है तो वेरिएबल्स विच आर अंडर स्टडी। पिक्टोग्राम क्लियर है, जिसके अंदर पिक्चर्स के थ्रू आपको आपके डेटा का इंफॉर्मेशन मिल रही है, दैट इज योर पिक्टोग्राम। देन कमिंग टू द हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। अब इसमें देख सकते हो जो तुम्हारी एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में हमें क्या दिख रहा है? बॉडी टेम्परेचर दिख रहा है, राइट। और वाई एक्सिस में हमें क्या दिख रहा है? डेंसिटी दिख रही है, ओके। एक्स एक्सिस जो होगी वो तुम्हें क्या बताएगी? तुम्हारे ग्रुप्स बताएगी या तुम्हारे कैरेक्टरिस्टिक्स बताएगी। और वाई एक्सिस हमें क्या दिखाती है? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये हमारा क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है? आपने हिस्टोग्राम बनाया और उसके जो मिड पॉइंट्स होते हैं उन सबको कनेक्ट कर दो, ठीक है। सो इट इज एन एरिया डायग्राम डेवलप्ड ओवर द हिस्टोग्राम। पिक्चर से देख सकते हो हिस्टोग्राम बना हुआ है, राइट। हमने अभी क्या पढ़ा था? हिस्टोग्राम, ये हिस्टोग्राम। और उसके ऊपर हमने क्या कर दिया? जो भी मिड पॉइंट्स थे उनको अगर मिलाकर कोई डायग्राम बनाते हैं, सो दैट इज बेसिकली योर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। देन कमिंग टू द कार्टोग्राम, स्पॉट मैप और योर शेडेड मैप, ठीक है। बेसिकली ये हमें क्या बताता है? ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इसको हम शेडेड मैप डायग्राम भी बोलते हैं, कार्टोग्राम भी बोलते हैं या स्पॉट मैप भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किसके थ्रू दिख रही है हमें? ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग, ओके। देन स्कैटर्ड डायग्राम क्या होता है? हम स्कैटर डायग्राम के लिए सबसे पहले टेबल्स प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। इन विच फ्रीक्वेंसी ऑफ एटलीस्ट टू वेरिएबल्स हैव बीन क्रॉस क्लासिफाइड, ओके। फॉर एग्जांपल इसमें हमने क्या लिया? सीरम कोलेस्ट्रॉल, राइट।
तो सेरम कोलेस्ट्रॉल्स को हम क्या कर रहे हैं, हमने एक टेबल प्रिपेयर कर ली, हमने देख लिया उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, और उसको हमने बेसिकली लेबल कर दिया अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी. ओके, and it shows the correlation between the two variables, that is x-axis and y-axis, in the same person or groups, and it is also called as correlation diagram. ठीक है, जब आप पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपने अपने डेटा को डिवाइड कर दिया, इन विच एक्स एक्सिस अगेन शोइंग योर कैरेक्टरिस्टिक एंड वाई एक्सिस शोइंग द लेवल ऑफ द दैट कैरेक्टरिस्टिक. अब आते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे कि सैंपल. इतनी देर से हम बोल रहे हैं हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, या हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, या हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कलेक्ट कर रहे हैं, राइट? तो जो कलेक्शन मेथड है, उस हम क्या कलेक्ट कर रहे हैं और क्या कलेक्शन मेथड है, दैट इज अ सैंपल. ओके, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में टारगेट पॉपुलेशन है 2000, बट आई कैन नॉट take the data of 2000 population or 20,000 population, right? So I'll be collecting some samples from that population which will be representing that whole population. Okay, जो जितने लोगों को मैंने उसके अंदर से लिया, जिसने पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करा, वो मेरा क्या हो गया, सैंपल. अब डिफरेंट डिफरेंट सैम्पलिंग टेक्निक्स होती है. अगेन सैम्पलिंग टेक्निक्स जो होती है वो डिवाइडेड होती है टू पार्ट्स में, दैट इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को अगेन डिवाइड करते हैं हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में, मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग में, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग एंड सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग. नाम सुन के मत डरना, अभी हम ये सब आगे पढ़ेंगे. ओके, देन सेकेंड इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड. प्रोबेबिलिटी मतलब क्या हो गया, जिसके अंदर हर यूनिट के पास में इक्वल चांस है टू गेट सेलेक्टेड. और नॉन प्रोबेबिलिटी मतलब क्या हो गया कि कोई इक्वल चांसेस नहीं है, जस्ट हमें इतने सैंपल्स चाहिए थे और हमने इतने के इतने सैंपल्स ले लिए. ठीक है, उसमें हर इंडिविजुअल के पास में इक्वल चांस है कि वो सेलेक्ट हो सकता है, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, सो नॉन प्रोबेबिलिटी इज डिवाइडेड इनटू जजमेंट सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग एंड एक्सटेंसिव सैम्पलिंग. ठीक है, स्टार्टिंग विद द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जैसे नाम से ही क्लियर है, मतलब every individual or every unit in the population has no equal chance of getting selected in the sample. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में 100 पॉपुलेशन थी और मैंने 100 की 100 पॉपुलेशन को ले लिया. ठीक है, तो उसमें क्या, या फिर सॉरी, मेरे पास में 100 पॉपुलेशन थी और उसमें से मैंने डिटरमाइन कर लिया कि मुझे 20 मेल्स चाहिए थे, 20 फीमेल्स चाहिए थी, राइट? तो मैंने क्या करा, जो मुझे फर्स्ट 20 मेल्स मिले, फर्स्ट 20 फीमेल्स ली, मैंने ले लिया. तो अब मेरे पास में क्या, पीछे वाले जो इंडिविजुअल्स बचे थे उनके पास में इक्वल चांस था वो सेलेक्ट हो जाए? नहीं. सो दैट इज बेसिकली योर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. कोटा सैम्पलिंग मतलब क्या होता है, एक सेलेक्टेड कोटा आपने डिटरमाइन कर दिया और उसी कोटे के अकॉर्डिंग आप अपना सैंपल कलेक्ट कर रहे हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई वेंट टू फाइनल ईयर बीडीएस एंड आई सेड कि आई वांट ओनली द टॉपर्स ऑफ द क्लास. ओके, तो ये क्या हो गया, एक सेलेक्टेड कोटा, राइट? सो आई एम सेलेक्टिंग, मैंने सारे टॉपर्स को ले लिया और वो एक फिक्स क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मैंने एक सेट कोटा में उन सैंपल्स को सेलेक्ट कर दिया, दैट इज द कोटा सैम्पलिंग. देन पर्पसिव सैम्पलिंग क्या हो गई, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में मिक्स पॉपुलेशंस थी, लेकिन मैंने बोला कि मुझे ग्रीन टी शर्ट वाले ही पीपल चाहिए, राइट? सो दैट इज, वो क्या हो गई मेरी पर्पसिव सैम्पलिंग. पर्पसिव नाम से समझ में आ रहा है, पर्पसफुली हमने सेलेक्ट करा है किसी सैंपल को. देन स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होती है, स्नोबॉल सैम्पलिंग मतलब एक रेफरेंस पॉइंट से हमारे पास में दूसरे सारे रेफरेंसेस बनते गए. ठीक है, दिख रहा है, मैंने एक पर्सन को लिया, मैंने उससे पूछा कि तुम आर यू टेकिंग टोबैको, उसने बोला यस. मैंने बोला ओके, सो तुम और तुम्हारे साथ में कितने लोग लेते हैं, उसने 2 नाम बताए, 2 ने फिर मुझे और 4 नाम बताए, 4 ने मुझे और 8 नाम बताए. सो दैट इज बेसिकली योर स्नोबॉल सैम्पलिंग. स्नोबॉल देखिए, छोटी सी बॉल होती है, वो क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ते 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 एक बड़ी बॉल में कन्वर्ट हो जाती है, राइट? सो सेम सैम्पलिंग का मतलब क्या हुआ, हमने स्टार्ट करा था एक रेफरेंस पॉइंट से, लेकिन वही रेफरेंस पॉइंट हमारे लिए दूसरे रेफरेंसेस बनते गए. ठीक है,
अब आते हैं हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सबसे पहली होती है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मतलब, अच्छा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मतलब मैंने क्या बताया था, जिसके अंदर एवरी इंडिविजुअल हैज इक्वल चांस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड। ओके, ध्यान रखना, एवरी इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग गेटिंग सेलेक्टेड। ओके, अब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में एग्जाम्पल से देख सकते हो, मेरे पास में 4 इंडिविजुअल्स थे, 1 2 3 4, राइट। रैंडमली मैंने उन्हें सेलेक्ट करा। उसके भी दो मेथड होते हैं, एक हैट मेथड होता है, मैंने सबके नाम की स्लिप बनाई, उस हैट में डाल दी और उसमें से जो भी स्लिप्स आई उन इंडिविजुअल्स को मैंने सेलेक्ट कर दिया। तो अब सबके पास में प्रोबेबिलिटी है कि वो उसके अंदर सेलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, दैट इज योर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। देन सेकेंड इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, इसमें एक सेट क्राइटेरिया होता है कि चूजिंग एवरी nth आइटम फ्रॉम अ लिस्ट बिगनिंग एट अ रैंडम पॉइंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने सेट करा कि मुझे एवरी थर्ड सैंपल चाहिए, तो फर्स्ट सैंपल मैंने ले लिया, सेकंड, सेकंड के बाद में एवरी थर्ड सैंपल मतलब क्या हो गया, सेकंड के बाद में थर्ड सैंपल क्या आएगा, फिफ्थ, फिफ्थ का थर्ड सैंपल आएगा एट, एट का 11th, ये सारे मेरे क्या हो गए, सैंपल्स। देन स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। अब स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग मतलब क्या होता है, आपने पॉपुलेशन को डिवाइड करा ऑन द ग्रुप्स ऑन बेसिस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जैसे मेरे पास में कुछ इंडिविजुअल्स थे, ठीक है, सॉरी, उसमें से मैंने मेल्स को डिफरेंट कर दिया और फीमेल्स का एक अलग ग्रुप बना लिया। ठीक है, अब उसमें से मैंने सेलेक्ट करा कि मुझे 60 जिनका वेट था वो वाले लोग मुझे चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या करा, पहले उनको डिवाइड करा एक ग्रुप में जिसको हम स्ट्रेटा बोलते हैं, और स्ट्रेटा में से एक फिक्स कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग मैंने लोगों को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, देन फिर क्या आती है हमारी क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग में बेसिकली क्या होता है, पॉपुलेशन को डिवाइड करते हो क्लस्टर्स में, किस बेसिस पे, ज्योग्राफी के बेसिस के अकॉर्डिंग, और डायरेक्टली उस क्लस्टर को ही सेलेक्ट कर लेते हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास में पॉपुलेशन थी राजस्थान की, उत्तराखंड की, उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, तो मैंने क्या करा, क्लस्टर्स फॉर्म करे और क्लस्टर्स को ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग ही कैरेक्टरिस्टिक बेस पे डायरेक्टली सेलेक्ट कर लिया। फिर आते हैं हम मल्टी फेस सैम्पलिंग में। ठीक है, अब क्या होता है मल्टी फेस सैम्पलिंग में, पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम होल सैंपल एंड पार्ट फ्रॉम द सब सैंपल। ठीक है, जैसे मैंने एक टीबी सर्वे करा, ठीक है, तो मैंने उसमें क्या करा, फेज 1 में मैंने कलेक्ट करे टीबी, टीबी पेशेंट जिसमें क्या था, एम्प्टी था इन ऑल केसेस। फिर मैंने सेकंड फेज में कौन से करे, जिन्होंने एमटी पॉजिटिव भी थे प्लस वो उनका एक्सरे भी करा रखा था उन्होंने, चेस्ट एक्सरे भी। ठीक है, और थर्ड फेज में मैंने क्या करा, उन्होंने एक्सरे भी होना चाहिए, एमटी पॉजिटिव भी होना चाहिए, प्लस स्प्यूटम एग्जामिनेशन भी कर रखा हो। ठीक है, तो हमने क्या करा, कुछ हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी होल सैंपल से, क्यों, क्योंकि मैंने क्या करा, टीबी के पीपल लिए, टीबी में से हमने क्या निकाले, एम्प्टी केसेस निकाले। अब जिनमें, उसमें भी फिर हमने क्या करा, सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, जो एम्प्टी पॉजिटिव थे, जिन्होंने एक्सरे, चेस्ट एक्सरे भी करवाया था, और जिनका स्प्यूटम एग्जामिनेशन भी हुआ था। ठीक है, इसका फायदा क्या होता है, दिस सर्वे बाय सच प्रोसीजर इज लेस कॉस्टली, लेस लेबोरियस एंड मोर पर्पसफुल। फिर आते हैं मल्टी स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग में। मल्टी स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग मतलब होता है जब आपके पास में बहुत ह्यूज पॉपुलेशन हो। ठीक है, अब अगर हम कंट्रीज की बात करें तो हम हर कंट्री का सैंपल तो नहीं कलेक्ट कर सकते, तो हमने क्या करा, उस कंट्रीज को डिवाइड कर दिया सेगमेंट्स में, सेगमेंट्स को अगेन रीडिवाइड कर दिया हाउस होल्ड्स में, और हाउस होल्ड में से हमने कुछ पर्टिकुलर हाउस होल्ड के क्या ले लिए, सैंपल्ड इंडिविजुअल्स ले लिए। सो दैट इज योर मल्टी स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग। मतलब क्या हुआ, दो चीजों को फॉर्म करा, क्लस्टर और मल्टी स्टेज। ठीक है, क्लस्टर्स मतलब क्या था, एक ग्रुप ऑफ पीपल को ले लेना, राइट, एंड मल्टी स्टेज मतलब क्या हो गया, पार्ट्स में डिवाइड करके हमने ले लिया। ठीक है, अब इसी चीज में क्या आती है, कुछ आते हैं एरर्स। ठीक है, उसमें क्या क्या एरर्स होते हैं, कवरेज एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर एंड प्रोसेसिंग एरर। कवरेज एरर मतलब क्या होता है, वेन योर, जब फॉर एग्जाम्पल जो तुम्हारी टारगेट पॉपुलेशन थी, फॉर एग्जाम्पल तुमने यू हैड टू कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द 10 हाउस होल्ड, बट यू कलेक्टेड डेटा ओनली फ्रॉम 8 हाउस होल्ड। ठीक है, सो दैट इज द कवरेज एरर। मतलब वो क्या हुआ, इंडिविजुअल ने कवर नहीं करे
जितने सेट ऑफ डेटा कलेक्ट करने थे, ठीक है। ऑब्जर्वेशनल एरर मतलब क्या हो गया, जब कोई वैल्यू को तुमने गलत ऑब्जर्व करके रॉन्गली नोट कर लिया है, ठीक है। जैसे अ, जैसे क्लास में थे 10 फीमेल्स एंड 20 मेल्स, लेकिन तुमने क्या कर दिया, लिख दिया 8 फीमेल्स एंड 18 मेल्स, ठीक है। देन प्रोसेसिंग एरर मतलब क्या हो गया, जो इन द प्रोसेस ऑफ योर डेटा कलेक्शन, डेटा एंट्री, कोडिंग, एडिटिंग, आउटपुट, किसी में भी कोई एरर आ जाए, सो दैट इज योर प्रोसेसिंग एरर। मीन्स when you are collecting the data and you are processing the data, in processing if you get some error, that is your processing error. अब हम रिकैप कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ लिया। व्हाट इज डेटा, types of data, collection of data, presentation of data, what is sample, types of sampling methods and errors in sampling. आई गेस इतना पार्ट समझ में आया होगा एंड आई फील कि नाउ यू आर रिफ्रेश। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज योर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, अब सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, इट इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर दैट आइडेंटिफाइज अ सिंगल वैल्यू और एस्टिमेट एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस पिक्चर को देखकर बात करूं, तो इस पिक्चर में क्या हो रहा है, डिफरेंट पीपल है, राइट, और उनकी डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स है, राइट। लेकिन मैंने अपने बीच में सेंटर में क्या लिखा हुआ है, 160 सेंटीमीटर। तो क्या सबकी हाइट 160 सेंटीमीटर है, नहीं, राइट। लेकिन ये क्या है, एक एवरेज हाइट। तो एक एवरेज एस्टिमेट को लेना इज बेसिकली योर सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। नाउ द थ्री कॉमनली यूज्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर अरिथमेटिक मीन, median and mode. Mean is based on the mathematical estimate, median is based on the positional estimate, and mode is based on the frequency. Okay, coming with the first criteria, that is arithmetic mean. Arithmetic mean को हम average भी बोलते हैं, and it is computed by adding all the values in the data set divided by the number of observation in the sample. Okay, क्या करते हैं हम, जितनी तुम्हारे पास में ऑब्जर्वेशन थी उन सबको ऐड करोगे और ऐड करने के बाद में डिवाइड कर दोगे टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन से, ठीक है। एंड इट इज डिनोटेड बाय एक्स बार। द मीन ऑफ अ कंप्लीट पॉपुलेशन इज डिनोटेड बाय म्यू, एंड द मीन ऑफ एन डेटा आइटम इज गिवन बाय द फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास में अलग अलग हाइट के अलग अलग पीपल थे, हमने क्या करा, उन सब हाइट्स को एडिशन करा और ऐड करने के बाद में 10 पीपल थे तो 10 पीपल से डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये स्टेबल होता है, मोस्ट स्टेबल होता है अमंग अदर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, बिकॉज एवरी स्कोर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द वैल्यू ऑफ मीन। इसमें क्या कर रहे हैं, हम सारे डेटा को ऐड कर रहे हैं, राइट। तो क्या हो रहा है, एवरी स्कोर इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग द टू द वैल्यू ऑफ द मीन, एंड इट इज वेरी इजी टू कंप्यूट। बट लिमिटेशंस क्या होगी, इट मे नॉट बी एन एक्चुअल स्कोर इन द डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। हमने देखा था डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स थी, लेकिन हमारा मीन क्या निकला था, 160 सेंटीमीटर, जो कि क्या था, हमारा एक्चुअल मीन नहीं था, ठीक है। और इट में इजीली अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास में एक वैल्यू है 1 नंबर की और एक वैल्यू है 100 नंबर की, तो अब मेरा क्या होगा, डेटा जो होगा वो डिस्टर्ब होगा, किसकी वजह से, एक्सट्रीम वैल्यू की वजह से, ठीक है। एक्सट्रीम वैल्यू मतलब क्या हो गया, एक लार्ज डिफरेंस स्मॉल और बिग वैल्यूज में। चलो एक एक्सरसाइज कर ले, व्हाट इज द मीन डीएमएफटी ऑफ दीज 5 चिल्ड्रन, ठीक है। क्या था इनमें स्कोर, 1 1 2 2 3। अब इसका हम कैसे निकालेंगे मीन, क्या बोला था, सबको ऐड कर देंगे, तो 1 + 1 + 2 + 2 + 3 इज योर 9 डिवाइडेड बाय 5, सो योर मीन विल कम एज 1.8, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब हमारा क्या हो गया, 12 भी ऐड हो गया, तो अब हमारा मीन क्या आ गया, 4। अब लेकिन तुम देख रहे हो दोनों में कितना डिफरेंस है, 1 और 12 नंबर में, तो एक्सट्रीम वैल्यू से हमारा मीन कितना चेंज हो गया, ठीक है। फिर देखते हैं, अब इस केस में जहां पर हमारे पास में एक्सट्रीम वैल्यूज आ जाए, ठीक है, तो हम क्या निकालते हैं, मीडियन। अब जब तुम इन दोनों का मीडियन निकालोगे तो दोनों की वैल्यूज क्या आई, 2। तो ऐसे केसेस में जहां पर एक्सट्रीम वैल्यूज हो, हमारा मीडियन जो है वो ज्यादा सक्सेसफुल होता है, ठीक है। अब बेसिकली मीडियन होता क्या है वो देखेंगे। मीडियन इज बेसिकली योर
पोजिशनल एस्टिमेट। ठीक है, कैसे फाइंड करते हैं? अगर आपके पास में डेटा जो है वो ऑड नंबर्स में है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में 5 पर्सन्स का वेट था, ठीक है, तो 5 को मैं क्या करूंगी, असेंडिंग ऑर्डर में जमाऊंगी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 60, 61, 62, 63, 64, ठीक है, ये सब क्या था, वेट, असेंडिंग ऑर्डर में जमा दिया। अब उसमें से जो बीच वाली वैल्यू थी वो हमारी क्या हो गई, मीडियन, ठीक है, जैसे क्या बोला था मैंने, 60, 61, 62, 63, 64, बीच वाली वैल्यू कौन सी हो गई, 62, तो 62 हमारा क्या हो गया, मीडियन। अब लेकिन अगर मेरे पास में इवन नंबर है, जैसे 60 से 66 तक 6 वेट थे मेरे पास, तो अब क्या करेंगे, जो बीच की दो वैल्यूज होती है, मतलब 62 और 63, उन दोनों को ऐड करेंगे और फिर डिवाइड कर देंगे, वो मुझे क्या दे देगा, मीडियन। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। अब अगर मुझे देखना है कि 10 स्टूडेंट्स में मीडियन कितना था, ठीक है, ये उसमें डीके टीथ के नंबर दे रखे हैं, तो हमने क्या कर दिया, दिख रहा है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या है, इवन नंबर है, ठीक है, इवन नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हम क्या करेंगे, इसको असेंडिंग नंबर में सेट करेंगे। जब तुम असेंडिंगली इसे जमाओगे तो उसके बाद में तुम्हारे पास में क्या आ जाएगा, मिडल दो वैल्यूज आ जाएगी, मीन्स फिफ्थ एंड सिक्स्थ वैल्यू जो कि 2 रहेगी, उसका हम क्या निकाल देते हैं, मीन। तो 2 + 2 = 4, 4/2 सो इसका मीडियन क्या आएगा, 2। लेकिन अगर ऑड नंबर होगा तो डायरेक्टली क्या होगा, असेंडिंग वैल्यूज जमाओगे और जो बीच वाली वैल्यूज निकलेगी दैट विल बी योर मीडियन। ओके, देन मीडियम की प्रॉपर्टीज क्या होती है, अब इसमें देखोगे कि इसमें एक्सट्रीम वैल्यूज से कोई दिक्कत नहीं आ रही, राइट? क्यों? क्योंकि हमारी हम मिडल पॉइंट्स ले रहे हैं, राइट? अब मिडल पॉइंट्स ले रहे हैं तो मिडल पॉइंट्स में क्या था, अगर मेरे पास में फर्स्ट वैल्यू स्टार्ट हो रही थी 1 से, उसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाया और वो 50 तक गई, लेकिन मैंने क्या ली, मिडल वैल्यू, तो दैट इज अ पोजिशनल एस्टिमेट, तो इसलिए इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। ओके, और ये ऑर्डिनल लेवल पे भी अप्लाई कर सकते हो, बट लिमिटेशन क्या हो गई, ये एक्चुअल ऑब्जर्वेशन नहीं होती है डेटा सेट की, और एग्जैक्ट मिड पॉइंट ऑफ द स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जैक्ट तुम्हें मिड पॉइंट ही चाहिए होता है, राइट? अब इस केस में क्या है, मीन मीडियन। जब ऐसा केस आ जाता है तो हमें क्या निकालना पड़ता है, मोड। ठीक है, मोड बेसिकली क्या होता है, ये मोस्ट यूजफुल मेथड होता है व्हेन यूज्ड विथ कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, नॉमिनल हो या ऑर्डिनल डेटा हो, कैसे भी वेरिएबल्स हो या स्मॉल सैंपल साइज हो, किसी भी तरह की कैटेगरी हो, मोड सबसे इजी वे होता है और मोस्ट यूजफुल वे होता है। ओके, इस इसमें आपको मीनिंगफुल ऑर्डर में डेटा नहीं जमाना पड़ता, लार्ज सैंपल्स हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि कोई टीडियस टास्क नहीं होती, और स्मॉल सैंपल्स हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, एक्सट्रीम वैल्यूज में भी अफेक्टेड नहीं होते हैं, और या तो नो मोड हो सकते हैं, वन मोड हो सकता है, वन मोड, या फिर टू मोड्स हो सकते हैं, टू मोड्स होते हैं तो बाईमोडियल बोलते हैं, थ्री मोड्स होते हैं या थ्री से ज्यादा होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, मल्टी मोडल। ठीक है, मोड का फॉर्मूला क्या होता है, 3 मीडियन - 2 मीन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम फर्स्ट केस की बात करें, इसमें हमें क्या दिख रहे हैं, ब्लड ग्रुप्स दिख रहे हैं, ठीक है, ज्यादा तुम्हें कौन से रिपीटेटिव दिख रहे हैं, ए पॉजिटिव, ये हमारा कैसा डेटा हो गया, मल्टी मोडल। ठीक है, तो हमारा मोड क्या निकल गया, जो भी मल्टीपल मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है दैट इज योर बेसिकली मोड। सेकेंड एग्जाम्पल में देखो, अब इसमें क्या है, 72 भी 2 बार रिपीट हो रहा है, 85 भी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसमें हमारा मोड क्या हो जाएगा, दोनों। ये क्या हो गया हमारा बाई मोडल डेटा। ठीक है, देन प्रॉपर्टीज ऑफ द मोड क्या होती है, इट कैन बी यूज व्हेन द डेटा आर क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव, कैसा भी डेटा हो इसको तुम आराम से यूज कर सकते हो, एंड इट कैन बी यूज विथ कैटेगोरिकल वेरिएबल्स ऑल्सो। ओके, इसमें कोई मीनिंगफुल ऑर्डर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लिमिटेशंस कभी कभी एग्जिस्ट ही नहीं होता है, और या फिर कभी कभी ये भी कुछ केसेस में एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड हो जाता है। ठीक है, एक बार सेंट्रल टेंडेंसी का हम रिकैप कर लेते हैं। सेम वही चीज लेते हैं हम, अगर मेल फीमेल है, ठीक है, तो हम उसके अंदर क्या निकालेंगे, मोड निकालेंगे। ठीक है,
कल्चर टेस्ट करना होगा पॉजिटिव नेगेटिव, तो अगेन हम क्या निकालेंगे, मोड निकालेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट हो सकता है और इसमें मीडियन भी हेल्पफुल नहीं रहेगा। डेंटल फ्लोरोसिस ग्रेड्स होगी तो इसमें मीडियन भी निकाल सकते हो, मोड भी निकाल सकते हो। डेंटल केरीज होगी तो इसमें क्या अगेन निकलेगा, मोड। जिंजाइवल ब्लीडिंग होगी तो मीडियम मीडियन भी निकल सकता है, मोड भी निकल सकता है। नंबर ऑफ पेशेंट्स, इसमें मीन भी निकाल सकते हैं, मीडियन भी निकाल सकते हैं। एज में भी मीन मीडियन निकल सकता है, नंबर ऑफ टीथ प्रेजेंट में भी मीन मीडियन निकल सकता है, राइट। और सेम अगर बीएमआई की बात करें तो बीएमआई में भी हमारा मीन मीडियन निकल सकता है, ठीक है। आई गेस मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी समझ में आए होंगे। सेकंड हम आते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में। अब हमने ये तो देख लिया कि हमारा एवरेज क्या निकला, लेकिन एवरेज से डेविएशन कितना था, ठीक है। या फिर यू वांट टू नो कि हाउ मच योर डेटा डिफर्ड फ्रॉम योर एवरेज वैल्यू, देन वी यूज द मेथड्स ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है। ओके, टाइप्स ऑफ डिस्पर्शन में क्या क्या आता है, रेंज। बेसिकली हमें सिर्फ डिफरेंस देखना है कि एवरेज नंबर से हमारा जो मेन सैंपल था उसमें कितना डिफरेंस था, ठीक है। तो इसको हम किसके थ्रू कैलकुलेट करते हैं, रेंज के थ्रू। इंटर क्वार्टाइल रेंज निकाल सकते हैं, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। रेंज बेसिकली क्या होती है, मैक्सिमम नंबर से मिनिमम नंबर को अगर सब्सट्रैक्ट कर लो तो दैट गिव्स यू रेंज। ओके, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यूज। द रेंज इज क्वाइट लिमिटेड इन स्टैटिस्टिक्स। अब जैसे अगर मैं बात करूं, मेरे पास में डेटा था 10 से लेकर 90 तक, तो मेरा जो रेंज होगा वो क्या था, मेरा मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, राइट। तो मेरी रेंज किसके बीच में आएगी, 10 से 90 के बीच में आएगी। 90 माइनस 10 इज 80, ठीक है। लेकिन अगर तुम इस डेटा को देखोगे तो क्या हो रहा है, 45 से 68 मेरी एवरेज वैल्यूज आ रही है। 10 के रिलेटेड, 10 के आसपास की वैल्यूज ज्यादा नहीं है, 90 के आसपास की भी वैल्यू ज्यादा नहीं है, राइट। तो ऐसे केस में रेंज हमारी इफेक्टिव नहीं होती है। उस केस में हमें क्या निकालना पड़ता है, मीन डेविएशन, ठीक है। मीन डेविएशन क्या होता है, एवरेज ऑफ द मीन डेविएशन फ्रॉम द एरिथमेटिक मीन, ठीक है। मतलब मीन डेविएशन हम कैसे निकालते हैं, किसका एवरेज निकालते हैं, एरिथमेटिक मीन का। सबसे पहले क्या करेंगे, हम मीन कैलकुलेट कर लेते हैं पॉपुलेशन का। देन वो हमने क्या हो गया, हमारे पास में एक्स वैल्यू आ गई, ठीक है। क्या आ गई हमारे पास में, मीन वैल्यू। फिर उसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, किससे, सब्सट्रैक्ट ईच वैल्यू एक्स आई फ्रॉम द मीन। इन सब वैल्यूज को ऐड कर दो, देन डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिव्स यू बेसिकली योर मीन डेविएशन। इसका फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, मीन करेंगे कैलकुलेट, जितनी भी वैल्यूज थी उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे उस कैलकुलेटेड मीन से। फिर सारी जो वैल्यूज थी, जो तुम्हें ऑब्टेन्ड वैल्यू भी है, उसे एडिशन करेंगे एंड डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। देन अब इसके अंदर जो तुम्हारा मीन डेविएशन था उसमें क्या आ रहा है, माइनस साइन को हटाने के लिए हमारा क्या आया, स्टैंडर्ड डेविएशन आया प्रेफरेंस में, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ नहीं होता है, जो तुम्हारा मीन डेविएशन है उसका स्क्वायर डेविएशन हो जाता है योर स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके। ये क्या मेजर करता है, ये स्प्रेड ऑफ द वैल्यूज अराउंड द मीन, मीन के अराउंड कितनी वैल्यूज स्प्रेड थी वो हमारा मेजर करता है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। इसका ये फॉर्मूला होता है। अगेन वही सब काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमने मीन निकाला, मीन की ईच वैल्यूज को सब्सट्रैक्ट करा, स्क्वायर करा, उन सब वैल्यूज को ऐड करा। अब सिर्फ क्या करा हमने, एक एडिशनल स्टेप होती है, क्या करा, स्क्वायर कर दिया वैल्यूज का और फिर उसके बाद में डिवाइड कर दिया टोटल वैल्यूज से। सो स्क्वायर रूट अगर हम कर देते तो वो हमारा क्या हो जाता है, मीन डेविएशन, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखो मेरे पास में 3 एग्जांपल्स है, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल में तुम्हें ये समझाने के लिए कि बेसिकली ये फिगर्स में कितना डिफरेंस आ रहा है एवरेज में, ठीक है। अब ये 3 फिगर्स दिख रहे हैं, तीनों का जब तुम मीन निकालोगे तो तीनों का मीन 7 ही आ रहा है, लेकिन तुम्हें फिगर से क्लियर होगा कि सारी वैल्यूज सेम
नहीं है, ठीक है। फर्स्ट में क्या है, हमारे पास में इतने सारे 7 है, सेकंड में हमारे पास 8 भी आ गया, 6 भी आ गया, और थर्ड में हमारे पास 9, 13, 8, 7 डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है, लेकिन तीनों का मीन सेम आया। अब ऐसे केस में हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो इस केस में हमें क्या निकालना पड़ेगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। अब तीनों के स्टैंडर्ड डेविएशन जब हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे तो क्या निकल रहा है? फर्स्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन निकला 0, सेकंड का स्टैंडर्ड डेविएशन निकला 0.63, और थर्ड का स्टैंडर्ड डेविएशन निकला 4.04। अब तुम डिफरेंस देख सकते हो कि तीनों डेटा सेम नहीं थे, इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन इंपॉर्टेंट होता है। फिर हम बात करेंगे नॉर्मल कर्व की। ठीक है, नॉर्मल कर्व बेसिकली क्या होता है? when a large number of observations are there, then what you will do, you will arrange all the observations on that curve, एंड फॉर एग्जाम्पल हाइट हो गई, ब्लड प्रेशर हो गए, पल्स रेट हो गए, तो एक हिस्टोग्राम बनाते हैं। हिस्टोग्राम में हम सारी जो हमारी वैल्यूज थी उसको सेट करते हैं। अगर एक स्मूथ कर्व बनता है जो बेल शेप्ड होता है, ठीक है, तो वो हमारा, या सिमेट्रिकल कर्व बनता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल कर्व बोलते हैं। ठीक है, आधी वैल्यूज इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे होती है, आधी वैल्यूज जो होती है वो राइट हैंड साइड पे होती है, सब एक तरीके से जमी हुई होती है। ठीक है, देन इस इन दिस केस, अगर आपका बेल शेप कर्व है, देन values are symmetrically distributed on each side of the mean, and it is a the values are normally distributed and symmetrically distributed in the curve, then it is called as normal curve or the Gaussian curve. ठीक है, 1 SD से mean around 1 SD covers at 68.3 of data. Mean around 2 SD covers 95.4% of the observation, और 3 SD से तुम्हें डेटा दिख रहा है तो वो ऑलमोस्ट 99.7% ऑफ ऑब्जर्वेशंस को कवर कर लेता है। ठीक है, ओके। अगर तुम्हारा डेटा सिमेट्रिकली नहीं है डिस्ट्रीब्यूटेड, देन इट इज कॉल्ड एज स्क्यूड कर्व। ठीक है, एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, या तो वो नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। नेगेटिव मतलब जो स्लाइड डाउन हो रहा है, और जो जो बढ़ रहा है और फिर घट रहा है वो क्या हो गया? हमारा पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब हम आते हैं रिसर्च के सेकंड पार्ट पे, जिसमें फर्स्ट हम क्या करते हैं? प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन करते हैं, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन करते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, और लास्ट में कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट करा था? आइडिया फॉर्मेशन से, राइट? जब हमारे दिमाग में आइडिया आया, हमें लगा कि हमें इस प्रॉब्लम पर वर्क करना है, तो हमने एक रिसर्च क्वेश्चन फॉर्म करा, उसके ऊपर हाइपोथेसिस बनाया कि फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर। ये मेरा हाइपोथेसिस हो गया, राइट? अब इट कैन बी ट्रू ऑल्सो, इट कैन बी फॉल्स ऑल्सो, राइट? देन आई कलेक्ट द डेटा अकॉर्डिंग टू माई hypothesis. I'll apply the test to check my results, and then will draw the conclusion कि whether smoking was causing the lung cancer or not. Okay, अब हम आते हैं लास्ट पार्ट पे, जो कि है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। मतलब तुम्हारे पास में डेटा आ चुका है, तुमने उसके मीन, मीडियन, मोड सब कैलकुलेट कर लिए। अब उस डेटा को एनालाइज करना है, राइट? अब उस डेटा में हमें देखना है कि एग्जैक्टली हमें जो रिजल्ट्स चाहिए थे वो कुछ सिग्निफिकेंट शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैंने बीच में बोला था आई टेल यू अबाउट द हाइपोथीसिस, राइट? हाइपोथीसिस मतलब बेसिकली क्या होता है? जो क्वेश्चन आपने फॉर्म करा है, सपोज अगर मैं बात करूं कि स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर, ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया? ऑल्टरनेट हाइपोथीसिस, जिसको मुझे चेक करना है कि वेदर स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर और नॉट। ठीक है, लेकिन मेरा जो नल हाइपोथीसिस होगा वो क्या करेगा? हमेशा उस बात को रिजेक्ट करेगा। रिजेक्ट करेगा मतलब हमेशा उसको क्रॉस करेगा, कैंसल करेगा। मीन स्मोकिंग डज नॉट कॉज लंग कैंसर। ठीक है, मेरा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या था? कि स्मोकिंग कॉज कर रहा है लंग कैंसर। और नल हाइपोथेसिस क्या बोलेगा? हमेशा रिजेक्ट करेगा तुम्हारी ऑब्जर्वेशन को, जो कि वो क्या बोलेगा? स्मोकिंग डज नॉट कॉज लंग कैंसर। ठीक है, इस एग्जाम्पल को देखो, जैसे मेरी ऑल्टरनेट मेरा मेरा क्वेश्चन था कि वेयर हैव ऑल माई सॉक्स गॉन।
ठीक है, और मेरा मेरा हाइपोथेसिस था कि एलियंस मेरे सॉक्स को लेकर चले गए। नल हाइपोथेसिस क्या बोलेगा? नहीं, एलियंस ने नहीं लिए हैं, कोई और पॉसिबल एक्सप्लेनेशन होगा सॉक्स के जाने का, राइट? ओके, अब हम आते हैं स्टैटिस्टिकल टेस्ट पे। ठीक है, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली हम अप्लाई करते हैं स्टैटिस्टिकल टेस्ट। स्टैटिस्टिकल टेस्ट में दो टाइप्स के टेस्ट होते हैं, दो टाइप्स के डेटा के अकॉर्डिंग टेस्ट होते हैं। अगर क्वालिटेटिव डेटा है तो हमेशा ध्यान रखना क्या अप्लाई करोगे, काई स्क्वायर टेस्ट। क्वांटिटेटिव डेटा है तो टी टेस्ट, अनोवा, मैन विटनी और क्रुस्कल वॉलिस टेस्ट। अब सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं स्टैटिस्टिकल टेस्ट को। ठीक है, क्वालिटेटिव डेटा याद होगा जो कि क्या बता रहा था, क्वालिटी। ठीक है, अगर दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स है, ठीक है, 2x2 की टेबल बनती है तो हम क्या यूज करते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट। बहुत सिंपल टर्म्स में समझाती हूँ, अगर आपको दो ग्रुप्स में कंपैरिजन करना है तो हम क्या यूज करेंगे, काई स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, अगर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इन अ सेल गोज लेस देन बाय 5, ठीक है, जो तुम्हारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो अगर 5 से लेस होती है तो फिर हम क्या यूज करते हैं, फिशर एग्जैक्ट टेस्ट। अगर हमें देखना है कि बिफोर और आफ्टर फाइंडिंग्स क्या है, ठीक है, अभी हम सिर्फ क्वालिटेटिव डेटा के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमें दो इंडिपेंडेंट ग्रुप को कंपेयर करना था तो हमने क्या यूज करा, काई स्क्वायर टेस्ट। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी बिलो 5 गई तो हम क्या यूज करते हैं, फिशर एग्जैक्ट टेस्ट। ठीक है, और अगर हमें देखना है कि हमारे आफ्टर रिजल्ट्स क्या थे और बिफोर रिजल्ट्स क्या थे सेम ग्रुप में, तो हम क्या यूज करते हैं, मैकनिमर टेस्ट। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। अब इस टेबल को समझना, इसमें हमें क्या दिख रहा है, डेंटल केरीज अक्रेंस दिख रही है, कितने डेंटल केरीज प्रेजेंट थे, कितने केसेस में डेंटल केरीज एब्सेंट था। ठीक है, ओरल हेल्थ एजुकेशन में हमें कितनी प्रेजेंट केरीज मिली और कितनी एब्सेंट केरीज मिली, और कंट्रोल ग्रुप में हमें कितनी केरीज प्रेजेंट थी और कितनी केरीज एब्सेंट थी। ठीक है, अब काई स्क्वायर टेस्ट को समझते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब अगर हम बात करें प्रपोर्शन ऑफ पीपल विद डिजीज, वापस देखो कितने पीपल के अंदर डिजीज थी। फर्स्ट कॉलम दिख रहा है प्रेजेंट वाला, उसमें कितने लोगों में डिजीज प्रेजेंट थी, 15 में। ठीक है, माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मतलब क्या हो गई, तुम्हारी टोटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जितनी तुम्हारी पॉपुलेशन थी, तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है, 32। टोटल फ्रीक्वेंसी 32 हो गई, राइट? तो 15 डिवाइडेड बाय 32, दैट इज द प्रपोर्शन ऑफ पीपल विद डिजीज। और सेम प्रपोर्शन ऑफ पीपल विद नो डिजीज का फॉर्मूला क्या होता है, कितने लोगों में डिजीज नहीं थी, देख सकते हो सेकंड कॉलम में 15 और 2 मतलब 17 लोगों में डिजीज नहीं थी, राइट? सो टोटल पीपल विथ नो डिजीज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन विल गिव्स यू प्रपोर्शन ऑफ पीपल विथ नो डिजीज। फिर आते हैं हम, अच्छा ये हमारी ऑब्जर्व्ड और हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई, इसको इस फॉर्मूला में अप्लाई कर दोगे तो हमारा क्या निकल जाता है, काई स्क्वायर टेस्ट। फिर आते हैं क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव टेस्ट में क्या होते हैं हमारे, पैरामेट्रिक टेस्ट। ठीक है, अगर आपके पास में सिंपल टर्म्स में समझाती हूँ, दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स है तो हम क्या यूज करते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट ग्रुप्स और डिपेंडेंट ग्रुप्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट ग्रुप्स मतलब जो तुम्हारा ग्रुप ए या ग्रुप बी है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं थे। ठीक है, डिपेंडेंट नहीं थे मतलब इस डेटा की वजह से इसका डेटा चेंज नहीं हो रहा था, या फर्स्ट डेटा की वजह से सेकंड डेटा पे कोई इफेक्ट नहीं था। ठीक है, तो वो हमारे क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट टू ग्रुप्स। तो वो हमारा क्या हो गया, अनपेयर्ड। हाँ, उसमें हम उन केसेस में वी यूज अनपेयर्ड टी टेस्ट। अगर सेम ग्रुप है, ठीक है, जैसे ग्रुप ए में ही मुझे बिफोर और आफ्टर इफेक्ट चेक करना था तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, पेयर्ड टी टेस्ट। और अगर मेरे पास में सेम ग्रुप है और मेरे पास में उसमें काफी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मेजर करने, मोर देन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे मेजर करने, ठीक है, 3 या मोर देन 3 कैरेक्टरिस्टिक मेजर करने, तो हम क्या यूज करते हैं, रिपीटेड मेजर अनोवा। इस स्लाइड को प्लीज ध्यान रख लो, इट इज वेरी बेनिफिशियल व्हेन यू वांट टू कंपेयर द डेटा बिटवीन द टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स, यू विल यूज अनपेयर्ड टी टेस्ट। अगर मुझे बिफोर आफ्टर सेम ग्रुप में देखना है तो आई यूज पेयर टी टेस्ट, एंड इफ माय डेटा आई हैव टू चेक माय कंपैरिजन बिटवीन 3 डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम और 3 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और मोर देन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, देन आई विल यूज रिपीटेड मेजर्स अनोवा। ओके,
टाइप्स ऑफ सिग्निफिकेंस में बेसिकली वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैटिस्टिकल टेस्ट और स्टैंडर्ड एरर होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर क्या होता है? जैसे मेरी पॉपुलेशन मीन जो थी उसके अंदर वेट था 65.6 kg, लेकिन जो मेरा सैंपल मीन था उसका वेट निकला 62.4 kg। तो ये क्या हो गया? आना कितना चाहिए था 65.6 kg, लेकिन निकालने में कितना निकला 62.4 kg। तो मेरी ये जो पॉपुलेशन है ये पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, तो ये क्या हो गया हमारा स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, ये होता ही है, ये फिक्स्ड है, ये होता ही है, कोई भी स्टडी रहेगी या कोई भी हम टेस्ट लगाते तो इतना होता है। ओके, फिर आते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। मैं इतनी देर से बोल रही थी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल्स, कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल्स, राइट? तो अब हम समझेंगे क्या क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर, ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया? डिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर हो रहा है, राइट? अब लेकिन अगर मैं बात करूं कि इतनी सारी पॉपुलेशन में जाम लगा हुआ है, ठीक है, क्या ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है? नहीं। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और अगर मैं कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल की बात करूं तो कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल को मैं इसी एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर, लेकिन क्या स्मोकिंग से ही लंग कैंसर होता है? नहीं, इधर अल्कोहल से भी हो सकता है, दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकते हैं, राइट? जो एडेड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हमें दिखते नहीं है वो क्या होते हैं? कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल्स। मैंने अभी ये चीज बताई थी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा में कौन कौन से टेस्ट यूज करते हैं। अगर क्वालिटेटिव डेटा है तो हमेशा ध्यान रखना हम कौन सा टेस्ट यूज करेंगे? काई स्क्वायर टेस्ट यूज करेंगे। ठीक है, और अगर हमारा क्वांटिटेटिव डेटा है तो हम क्या क्या यूज करेंगे? टी टेस्ट यूज करेंगे, अनोवा करेंगे, मैन विटनी और क्रुस्कल पॉलिस टेस्ट। ठीक है, इसमें भी अलग अलग वो होते हैं, लेकिन अभी तुम्हारे लिए इतना ही काफी है। ओके, देन फादर ऑफ हेल्थ स्टेटिस्टिक्स, ये हमें फर्स्ट में पढ़ना चाहिए था, बट आई नो हिस्ट्री थोड़ी बोरिंग होती है तो इसलिए आई हैव केप्ट दिस स्लाइड एज लास्ट स्लाइड। कैप्टन जॉन ग्रांट वाज द फादर ऑफ हेल्थ स्टैटिस्टिक्स। ओके, so shall we revise what we read today? Okay, so first we read the research part, that is the introduction. Then we read data, types of data, methods of collecting the data, presentation of data, sample and methods of sampling, measures of central tendency, measures of dispersion, and last the test of significance. I hope I made slide somewhat easy और शायद आप लोगों को concept समझ में आया होगा, but still if you find some problem in the concept then you can contact me anytime. Okay, you can mail me on my mail ID, and if you want I'll provide my mail ID and it's written in this picture as you can see, phealth965@gmail.com. You can ask your question, you can mail me anytime. If any problem is there, if you didn't understood any concept, then you can contact me anytime. So thank you from my side, and I hope I made biostatistics somewhat easily understandable. So, okay, we are done for today. It's over. Thank you so much. Thank you.